بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، السلام علیکم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی سلسلہ وار معلوماتی ویڈیو نمبر 78 میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس میں ہم آپ کو صلاح الدین ایوبی کی وفات کی افواہ، جو اس وقت افواہ تھی، اس کے بارے میں بیان کریں گے۔ تو دوستوں، اس جنگ کا کوئی فیصلہ نتیجہ برآمد نہیں ہوا تھا، جو کہ اس وقت الغولہ کے میدان میں لڑی جا رہی تھی۔ پھر بھی عیسائیوں کے کئی سرسبز شاداب علاقے تباہ و برباد ہو گئے تھے، اور صلیبیوں کو شدید مالی نقصانات کا سامنا کرنا پڑا۔ دوسری طرف سلطان صلاح الدین ایوبی کی نمایاں کامیابیاں حاصل ہوئیں۔ ایک یہ کہ صلیبیوں کے دلوں پر والی مصر سلطان صلاح الدین ایوبی کی داغ بیٹھ گئی۔ دوسرے 1000 کے قریب فرینکس قتل ہوئے، اور ان کا سلاٹ ڈوڈی سلطان صلاح الدین ایوبی کی قید میں آ گیا۔ لسکنن نے یروشلم پہنچ کر اپنے ایک سفیر دمشق بھیجا، اور فرینکس کے سلاٹ ڈوڈی کی رہائی کے لیے منہ مانگی رقم بطور فدیہ دینے کی پیشکش کی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے یروشلم کے نگران اعلیٰ کے اس درخواست کو بہت سختی کے ساتھ مسترد کرتے ہوئے کہا، ڈوڈی کے معاملے پر نہ کوئی سودے بازی ہو سکتی ہے اور نہ کسی کے نسخی مثالت، اور آئندہ اس معاملے میں کوئی بھی مراسلت میرے لیے ناقابل برداشت ہوگی۔ یروشلم کا سفیر واپس گیا تو شاہ آرمینیا ہورپن کا قاصد سلاٹ ڈوڈی کے سلسلے میں اس قسم کی پیشکش لے کر دمشق پہنچا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے آرمینیا کے سفیر کو بھی اتنا ہی سخت جواب دیا، ڈوڈی کا خیال اپنے دل سے نکال دو، وہ مر چکا ہے، اور ایک مردہ انسان پر گفتگو کرنا دانشوروں کا فعل نہیں ہے۔ عیسائی سفیروں کی اس قسم کے جوابات دے کر دراصل صلاح الدین ایوبی نے اپنے شدید غصے اور نفرت کا اظہار کیا تھا، ورنہ صورتحال یہ تھی کہ فرینکس کا سلاٹ ڈوڈی زندہ تھا اور اس کے کمرے پر سخت حفاظتی پہرا لگا ہوا تھا۔ والی مصر دن میں ایک بار ضرور اس کے کمرے میں جاتا تھا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے سلاٹ ڈوڈی کے جسم پر 10 کوڑے لگائے جاتے تھے۔ جب ڈوڈی کوڑے کی ہر ضرب پر کسی ذبح ہونے والے جانور کی طرح چیختا تھا، سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہونٹوں پر ایک اسودہ مسکراہٹ ابھر آتی تھی، اور وہ فرینکس کے سلاٹ سے مخاطب ہو کر کہتا تھا، تیری چیخیں ان بے گناہ اور مجبور مسلمانوں کی چیخوں کا معاوضہ نہیں جو دمشق کے نواحی علاقوں میں تیرے ہاتھوں قتل کیے گئے تھے۔ میں تو تجھے صرف اس لیے چیختا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں کہ اپنی مقتول دینی بھائیوں کی چیخوں کو اس وقت تک یاد رکھ سکوں جب تک ایک فرانکس میرے سپاہیوں کے ہاتھوں قتل نہ ہو جائے۔ ذاتی طور پر سلطان صلاح الدین ایوبی ایک انتہائی فراخ دل، اعلیٰ ظرف اور دشمن کے ساتھ بھی صلح رحمی کی کرنے والا انسان تھا، لیکن اللہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور عام مسلمانوں کے حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں وہ ایک آئینی چٹان سے بھی زیادہ سخت تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مارکا الغولہ سے فارغ ہونے کے بعد اکتوبر 1183 میں سلطان صلاح الدین ایوبی شاتم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ریجانلڈ کو اس کی ناقابل معافی گناہ کی سزا دینے کے لیے کرک کی طرف بڑھا۔ والی مصر صلاح الدین ایوبی کی فوجوں نے کرک کے نواحی علاقے بڑی آسانی سے فتح کر لیے، یہاں تک کہ شہر بھی سلطانی فوج کا قبضہ ہو گیا، لیکن ریجانلڈ اور اس کے لشکر نے فرار ہو کر قلعے میں پناہ لے لی اور دروازے بند کر دیے۔ کرک کا قلعہ اپنی مضبوطی کے باعث ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے 7 منجنیقیں نصب کر کے 1 مہینے تک سنگ باری کرے، مگر کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ قلعے کی مضبوط فصیلیں میں اتنا شگاف بھی نہ پڑ سکا کہ اس سے گزر کا ایک سپاہی بھی قلعے کے اندر داخل ہو سکتا۔ محاصرہ طول پکڑ جانے کے بعد دوسرے عیسائی حکمرانوں کو اتنا موقع مل گیا کہ وہ ریجانلڈ کی مدد کے لیے اپنے فوجیں روانہ کر سکے۔ مجبوراً صلاح الدین ایوبی محاصرہ اٹھا کر واپس جانے لگا، مگر پھر بھی چلتے چلتے والی مصر نے غائبانہ طور پر والی کرک ریجانلڈ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے دنیا کے سب سے زیادہ لعنت زدہ انسان، میں دوبارہ آؤں گا، اور اس وقت تک آتا رہوں گا جب تک کہ حق تعالیٰ مجھے میری قسم پوری کرنے کی توفیق عطا نہیں فرما دیتا۔
और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की कसम ये थी कि वो अपने हाथ से रिजाल्ट को कत्ल करेगा। कर्क से वापसी के फौरन बाद सियासत ने एक और नई करवट ली। अरबिल के हुक्मरान बदरुद्दीन और अल जजीरा का हाकम संजर शाह सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की खिदमत में हाजिर हुए और दोनों ने वाली मिस्र की अतात कबूल कर ली। संजर शाह वाली मौसल अजरुद्दीन मसूद का हकीकी भांजा था। जब अजरुद्दीन मसूद को यह खबर मिली तो इसने संजर शाह को तन्हाई में तलब करके बुरी तरह डांटा और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के हल्का वफादारी से निकल जाने के लिए कहा, मगर संजर शाह ने मामू की बात मानने से इनकार कर दिया और ये कहकर चला गया कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी मेमारे मिल्लत हैं, इनका साथ देने ही में हम सब की भलाई है। तो दोस्तों, अजरुद्दीन मसूद ने इस वक्त तो अपने भांजों को कुछ नहीं कहा, लेकिन अरबिल के हुक्मरान बदरुद्दीन को सख्त सजा देने का फैसला कर लिया। बदरुद्दीन ने एक लम्हा जाया किए बगैर अपने बर्क रफ्तार कासिद को दमिश्क रवाना किया और सलाहुद्दीन अय्यूबी से मदद की दरखास्त की। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने 15 अप्रैल 1185 को बेराक के मुकाम पर दरिया फरात को अवरुद्ध किया। यहां सलाहुद्दीन अय्यूबी का मोतबर और जानबाज हलीफ को कबरी भी इससे आ मिला। रासल ऐन के मुकाम पर सलाहुद्दीन अय्यूबी के जासूसों ने खबर दी कि मशरकी इलाके के तमाम हुक्मरान अजरुद्दीन मसूद को फौजी इमदाद पहुंचाने के लिए मुतहद हो गए, मगर सुल्तान ने इस अहम तरीन खबर को एक इंतहाई मामूली बात समझकर नजरअंदाज कर दिया और अपनी फौज के साथ मुरीदान की पहाड़ी के दामन से गुजरता हुआ दोइसर जा पहुंचा। ये इसके हलीफ का इलाका था। नतीजन यहाँ की फौज भी सुल्तान के हमरा हो गई। फिर जून 1185 की वस्त में सुल्तान मौसल के नवाई इलाके में पहुंच गया था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की आमद की खबर सुनकर वाली मौसल अजरुद्दीन मसूद बदहवास हो गया। इससे अंदाजा नहीं था कि सुल्तान इस हद तक भी कदम उठा सकता है। वाली मौसल में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से जंग करने की तो हिम्मत न थी, न सहलियत। मजबूरन इसने अपनी बूढ़ी वालदा 2 बेवियों को सुलह की दरखास्त देकर सलाहुद्दीन अय्यूबी की खिदमत में भेजा। बादशाह की तवील तारीख में शाजो नादर ही ऐसे वाक़या पेश आए होंगे जब मर्दों की बजाय औरतों ने सफारतकारी के फराइज अंजाम दिए होंगे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने खानदान जंगी की मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन का बेहद एहतराम किया, लेकिन सुलह के मामले में कोई बात नहीं की। मजबूरन वो ख़वातीन वापस चली गई और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने एक बार फिर मौसल का मुहासरा कर लिया। मौसल का शुमार मजबूत तरीन किलों में होता था, इसलिए सलाहुद्दीन अय्यूबी शिद्दत संगबारी के बावजूद अपने मकसद में कामयाबी हासिल न कर सका। दूसरे बरसात का मौसम भी शुरू हो चुका था। मजबूरन वाली मिस्र मुआसरा उठाकर दियारे बकर चला गया। फिर बरसात का मौसम खत्म होते ही अगस्त के आखिर में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने वापस आकर दोबारा मौसल का मुआसरा कर लिया। इस वक्त इस इलाके में शदीद तरीन गर्मी पड़ रही थी, जिसके असर से सलाहुद्दीन अय्यूबी सख्त बीमार हो गया। वाली मिस्र को तेज बुखार ने घेर लिया था। आम दवाइयां इस्तेमाल की गई, मगर कई दिन तक बुखार में कोई कमी वाक़या नहीं हुई। आखिर सलारों ने तब्दीली आबो हवा का मशवरा देते हुए हरान जाने का मशवरा दिया। ईरान सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के काबिल इत्मीनान हलीफ और दोस्त कोकरी का इलाका था। वहां सुल्तान को आराम सुकून के साथ बेहतर तबी सहूलतें भी मैसर आ सकती थी। एक हफ्ते के बुखार ने सलाहुद्दीन अय्यूबी के ढाकर रख दिया। अगर इसकी जगह कोई शख्स होता तो वे बस बिस्तर से उठकर भी बैठ नहीं सकता था, मगर हक़ ताला ने सलाहुद्दीन अय्यूबी को गैर मामूली हिम्मत और क़ुव्वत इरादी दी हुई थी। जब वो हरान जाने के लिए बिस्तर से उठा तो ज़ईफ़ और नकास से इसके कदम लड़खड़ा रहे थे। सुल्तान की हालत देखकर कबरी और 2 सलार इसे सहारा देने के लिए आगे बढ़े, मगर सुल्तान की गैरत और शुजाअत ने इसे ग्वारा नहीं किया और कहा, मुझे छोड़ दो। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने तेज लहजे में कहा और दोनों सलारों के हाथों को अलग कर दिया जो इसके बाजू थामे हुए थे। मैं बफजल खुदा अपने कदमों पर चल सकता हूँ। सलारों ने मजबूरन सलाहुद्दीन अय्यूबी के दोनों बाजू छोड़ दिए। तमाम लोग वाली मिस्र की इस आदत से वाकिफ थे कि वो मुशावरत को पसंद करता था, मगर जब किसी काम का इरादा कर लेता था तो वो किसे पूरा किए बगैर नहीं छोड़ता था, चाहे इसका कोई अंजाम हो।
इसकी जान ही क्यों न चली जाए। फिर देखने वालों ने देखा कि वाली मिस्र सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी लड़खड़ाते कदमों के साथ अपने घोड़े तक पहुंचा और आहिस्ता आहिस्ता इसकी पुश्त पर सवार हो गया। ये मंजर देखकर बाज सलारों की आंखों में आंसू आ गए। बीमारी ने सुल्तान को इस कदर थका डाला था कि घोड़े पर सवार होते वक्त इसने इंतहाई सुस्त रफी का मुजाहरा किया, वरना आज तक इससे पहले सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी एक ऐसे शाहसवार थे जो हमेशा उछलकर घोड़े की पुश्त पर सवार होते थे, और इसी सिफ्त ने सुल्तान को चौगान का सबसे बड़ा खिलाड़ी बना दिया था। और आज वही अजीम सवार बामुश्किल अपने घोड़े की लगाम में पकड़े हरान की तरफ जा रहा था। अगरचे सलारों ने सलाहुद्दीन अय्यूबी की जिद के आगे अपने सर खम कर दिए थे, लेकिन फिर भी सुल्तान को घेरे में लिए हुए चल रहे थे। इन्हें अंदेशा था कि किसी वक्त भी सुल्तान के हाथ से घोड़े की लगामें छूट सकती है, मगर सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बेपनाह इस्तकामत का मुजाहरा किया। कई बार इसके हाथ कांपे, लेकिन घोड़े की लगामें नहीं छोड़ी। आखिर तवील फासला तय करके अपने दोस्त कुबरे के महल में पहुंचे और बिस्तर पर लेटते ही बेहोश हो गए। वाली हैरान कुबरी ने अपने सुल्तान के तमाम महल तबीबों को महल में तलब कर लिया। हर तबीब ने अपनी तशखीसी सालियत और दुआ आजमा कर देख ली, मगर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की मर्ज में कोई कमी वाक़या नहीं हुई। यहां तक हैरान के तमाम तबीबों ने बेहक ज़बान एतराफ कर लिया कि इनके लिए सुल्तान की बीमारी नाकाबिले फहम है। दूसरे अल्फाज में तबीबों ने इस तरफ एक मुहिम सा इशारा कराया था कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को कोई इलाज मर्ज लाहक नहीं है। तबीबों की राय सुनकर वाली हैरान को घबरा गया और इसने एक बर्क रफ्तार कासिस हलब की तरफ रवाना किया, जहां सुल्तान का छोटा भाई मलक आदल मौजूद था। मलक आदल को बड़ी राजदारी के साथ सुल्तान की हालत की खबर दी गई। मलक आदल फौरन ही हलब के सबसे बड़े तबीब राजमी को लेकर तनहा हैरान की तरफ रवाना हो गया। अगरचे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की बीमारी को छुपाने की हर मुमकिन तदबीर अख्तियार की गई थी, लेकिन फिर भी यह अफवाह आम हो गई कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का इंतकाल हो गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के इंतकाल की अफवाह अवाम में आम होते ही हर तरफ एक हलचल सी मच गई। एशिया कोचक के सलीबी रियासतों के अलावा पूरी ईसाई दुनिया में एक जश्न का सा समान था। यरूशलेम के ईसाई बैतुल मुक़द्दस में जमा होकर अपनी बेबुना मुसरत का इजहार कर रहे थे। बेशुमार सलीबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक को आकर भरोसा देते और फिर बड़े वालहाना अंदाज में चीखने के अंदाज में कहते, मुकद्दस बेटे, तेरा नाम सदा बुलंद रहे, तेरी दुआओं से खुदा ने ईसाईयत के सबसे बड़े दुश्मन सलाहुद्दीन अय्यूबी को इसके अंजाम तक पहुंचा दिया है। तेरे मानने वालों पर हमेशा इसी तरह तेरी रहमत साया फगन रहे। ये तो सलाहुद्दीन अय्यूबी की मौत की खबर पर आम ईसाइयों के तासरा थे। इसके बरक्स यरूशलेम के महल में हंगामा कैफे तरफ जारी था। तमाम उमरा और शाही खानदान के तमाम अफराद शराब के नशे में गर्क थे और नीम तन रकासाओं की होश रुबा रक्स से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। दूसरी तरफ मुस्लिम रियासतें भी जश्न तरफ मकानाने में सलीबियों से किसी तरह कम नहीं थी। वाली संजार अम्बादुद्दीन, जो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का नगरां करिंदा था, सुल्तान की मौत की खबर सुनते ही खुशी से चीख उठा था। आज अल्लाह की अदालत में मेरे मुकदमे का फैसला हो गया और एक गासिब सब कुछ यहीं छोड़कर दुनिया से नाकाम और नामुराद चला गया। अमादुद्दीन सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का हकीकी भतीजा था और वाली मौसर अजरुद्दीन मसूद का छोटा भाई। जंगी खानदान का हर फर्द सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को गासिब सुल्तानत का कहकर पुकारा करते थे। फिर जब हलब के महाज पर अमादुद्दीन ने वाली मिस्र सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से बदतरीन शिकस्त खाई तो अमादुद्दीन ने सलाहुद्दीन अय्यूबी के सामने घुटने टेक दिए और उसकी हाकिमियत कबूल करने पर रजामंद हो गया था। फिर जब इसने सलाहुद्दीन अय्यूबी की वफात की खबर सुनी तो फरते मुसर्रत से दराफ्ता हो गया और हजियानी अंदाज में चीखने लगा, अब मैं आजाद हूं। अपने छोटे भाई से ज्यादा वाली मौसर अजरुद्दीन मसूद खुश था। उसने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की मौत की खबर सुनकर बेख्तियार कहा था, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ये जहरीला कांटा हमेशा के लिए मेरे रास्ते से दूर हो गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के इंतकाल की खबर
پر یہ تو دشمن کے جذبات تھے، خود اس کے اپنے عزیز و اقارب دوستوں کا یہ آتا کہ وہ سلطان کی جانشینی کے خواب دیکھنے لگے تھے اور سلطنت ایوبیہ کی تقسیم کے منصوبے بنا رہے تھے۔ پھر جب اس افواہ کی تردید ہو گئی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی شدید بیمار ہے اور ابھی فرشتہ اجل نے اس کی سانسیں غضب نہیں کی، تو سارے دشمنوں اور دوستوں کے جذبوں پر اوس پڑ گئی۔ یروشلم کے عیسائی دوبارہ بیت المقدس میں جمع ہوئے اور سلطان صلاح الدین ایوبی کا نام لے کر دعائیں مانگنے لگے۔ خداوند خدا، یہ تیرے جان کیسے پڑ گئی؟ تجھے تیرے مقدس بیٹے کا واسطہ اپنے اس زمین کو عیسائیت کے دشمنوں سے پاک کر دے۔ والی موصل عزر الدین مسعود، والی سنجار عماد الدین کا بھی یہی حال تھا۔ وہ دونوں بھی اپنے خدا سے یہی شکوہ کر رہے تھے کہ اس غاصب سلطان کو اتنی مہلت کیوں دی ہے، جلد از جلد اس کی سانسوں کا سلسلہ منقطع کر دے۔ تو دوستوں، اب ہم یہاں اجازت چاہتے ہیں آپ سے، کل تک کے لیے۔ کل ہم دوبارہ یہیں سے شروع کریں گے۔ اللہ حافظ۔